Hello everyone, welcome again my class business statics, and now in this time I taken a new chapter as an introduction of medium. In the last time I discussed a lot of things about the central tendency and define what is the mean and what different methods of the mean is like arithmetic mean, geometric mean or harmonic mean. Now next is a positional, according to the median, it is a positional average where we identify the position of the data series of mid value, then identify the average median. So like that of the mean, median is totally different. In mean, we calculate the average through a sum of all the data and divide number of data. Then we got a mean. But median is a central value of the variable that divide the series into two equal parts in such a way half of the item above the value and remaining half items below this value. So median is defined as the value of middle item. Uh, when the data are arranged in ascending or descending order of magnitude. जब आपका डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है मीन इज डिफाइन द वैल्यूज ऑफ टू मिडिल आइटम्स मीन हमेशा डिफाइन करता है दो वैल्यूज के मिडिल पॉइंट्स को बट मीडियन डिफाइन करता है द मिडिल आइटम ऑफ ऑल द डेटा विच अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स. Okay, so if we talk about the ungrouped data where the frequency distribution is not arranged, frequency distribution and values are not arranged, and all the data arranged in a ascending or descending order of magnitude, the median is the middle value of n. Here we use a single individual series because we study a three type of data series is there. First is the individual series, second is discrete series, and third is continuous series. So if we talk about the individual series where the frequency is not given, so the first point is what uh, convert the data in ascending and descending order, then move to a uh, formula. So when here is the two condition is there when the number of observation is odd or even number. If n is even number, then the median is mean of the two middle values, and if the n is odd number, then value is middle point. So we take an example here. Just like a given of the data is 15, 19, 21, 7, 10, 33, 25, 18, and a 5. That's mean first what we do, arrange the data in ascending or descending order. If you take data in ascending or descending order, the answer both are same. So no think about if you take in a descending order, so then answer is wrong. आप कोई भी आप किसी भी सीरीज में कन्वर्ट करिए चाहे असेंडिंग का डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी वैल्यू सेम आएगी. तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं तो दैट वैल्यू इज 5 7 10 15 18 19 21 25 33 एंड इफ यू काउंट द number, so number is there what 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 is obviously a odd number, so when the value is odd number then we use the formula is n plus 1 by 2. So 9 plus 1 by 2 is 10, 9 plus 1 is 10, 10 by 2 is 5. So fifth position number value is median. So here is the fifth position is what a 1 2 3 4 5. So 18 value is median. Here we solve it also, n plus 1 9 plus 1 upon 2, that is the 5. So fifth item of is the median, and median is 18. Next question we take, if we data we taken has the even number. Suppose that the here data we take 15, 19, 21, 7, 10, 33, 25, 18, 5, and 23. So here the number is a 10, and first what do this data arrange in a ascending order and descending order, ascending or descending order. So after arrangement of ascending order, we use the same formula n plus 1 by 2, and when we got an n plus 1 by 2, 10 plus 1 by 2 is equal to 5.5. So 5.5 here is represent, that is the item between the fifth and sixth item. So here the fifth item is what 18 and sixth item is what 19. So mean between of that item is 18 plus 19 upon 2.
So the mean of average of 18 plus 19 is 18.5. So that mean is 18.5. If we use this formula, you also get a मीडियन। इसी तरह से अगर एक दूसरा क्वेश्चन देखें जहाँ पे हम डायरेक्टली या फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमें डेटा दे रखा है 548 60 65 अगेन इधर 65 एंड 100। सो अगर हम यहाँ पे देखें डेटा, तो हमारे पास यहाँ पे जो डेटा है वो नंबर ऑफ डेटा जो 6 है, तो जो एवरेज ऑफ द वैल्यू जो मीडियन है हमारा एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2 + 1 आया, उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 6/2 means 6/2 is a third value, and 6/2 + 1 means is the fourth value, and average of the third value and the fourth value is 60 and 65 upon 2, तो that is mean 62.5। सो यहाँ पे एक तरीका निकालने का ये भी है, तो एग्जैक्ट नॉट भी here is not be exact defined formula। हमेशा मीडियन में क्या होता है, that is identify the middle values। if we talk about the middle values, you also be assume through a calculation of the data, या approximately आप individual data पे identify कर सकते हैं। So next we move to a group data. In a group data values, we are associated with frequencies. The data value associated with frequency grouping can be in the form of discrete frequency distribution or a continuous frequency distribution. Whatever may be the type of the distribution, cumulative frequencies have to calculated to know the total number of items. In a group data, where the frequency is occurring with the data, and the frequency distribution is mostly in come in a discrete series or continuous series. Whatever the type of the distribution, we first identify the cumulative frequencies, then we identify the total number of items. So what is the cumulative frequency? Cumulative frequency of each class is the sum of the frequency of the class and the frequency of the previous class। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हम जो क्लास होती है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते हैं प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी से, तो व्हेन देन वी गेट ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड लास्ट इन अ लास्ट टर्म वी गेट ना टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, सबसे पहला काम होता है हमें उसको उस डेटा को, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो कन्वर्ट इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, देन फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड यूज द फॉर्मूला इज n/2 + 1। Okay, so see, when the value of the n plus 1 n/2 + 1 values is there, तो देन corresponding value of x is median। जो भी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जहाँ पे हमें जब n/2 + 1 मिल जाता है, तो हम ये देखते हैं अगर उसके इक्वल कोई फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो उसके सामने x की वैल्यू देख लेते हैं। अगर उतनी वैल्यू नहीं है, तो हम ये देखते हैं उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, एंड दैट वैल्यू जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है उसको हम एक्स की जो वैल्यू होती है वही हमारा मीडियन होता है। तो सेम इज द क्वेश्चन इज एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हियर इज द क्वेश्चन इज मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का दे रखा है। सो जो भी मार्क्स हैं 40 स्टूडेंट्स के 45 है, 30 स्टूडेंट्स के 50 हैं, तो यहाँ पे जो मार्क्स है दैट इज डेटा एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इज अ फ्रीक्वेंसी। सो इस डेटा में हम देख रहे हैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में नहीं है। सो फर्स्ट वी कन्वर्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे 5 पे 10 है, 15 पे 20 है, फिर 15 के बाद 25/30 है। तो जो भी नंबर होता है उसके साथ में हम फ्रीक्वेंसी भी सेम लेते जाते हैं। जैसे कि 5 के 10 है, तो 15 20 है, 25 30 है, 35 50 है, 45 40 है। तो हमने ये डेटा को क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिया, और असेंडिंग ऑर्डर में लेने के साथ में हमने जो फ्रीक्वेंसी जो उसके सामने थी उसको सेम एज अ लिखा। देन फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं, जैसे आपकी 5 के सामने 10 है, तो हमने 10 पे 10 लिख लिया, फिर 20 को 10 से प्लस किया 30 हो गया, फिर 30 को 30 से प्लस किया 60, 60 को 50 से प्लस किया 110, 50 को 110 को 40 से प्लस किया 150, 150 को 30 से प्लस किया 180। तो जो भी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज n इज इक्वल टू 180। तो अब यहाँ पे हमारा सीधा सा एक फॉर्मूला रखना है, n+1/2 इस फॉर्मूला लगता है, तो 180 + 1 इज 181/2, तो दैट इज 90.5 आइटम। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम यहाँ पे स्टडी करें तो 90.5, 90 के अराउंड में कोई नहीं है, 90.5 से ही हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 110 है। तो हम देखते हैं 110 हमारी जो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव में, उसके सामने जो एक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है। सो सामने जो एक्स की वैल्यू है वो 35 है, तो अवर मीडियन इज व्हाट 35। तो हमें ये याद रखना पड़ता है जो भी क्यूमुलेटिव जो भी फॉर्मूले में n/1/2 करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है वो हमारी
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उससे बड़ी जो वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे 90 थी, 90.5 थी, तो उससे बड़ी वैल्यू वहाँ पे 110 थी, तो उसके सामने जो एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू थी दैट इज 35। तो यहाँ पे जो 35 था दैट इज आवर मीडियन। ओके, नाउ द कॉन्टिन्यूस सीरीज, जो ये तो डिस्क्रीट सीरीज की बात थी। जब कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट इज देयर, बट firstly we identify the everything is a continuous manner or not, then find the cumulative frequency and use the formula n by 2। जब cumulative frequency की वैल्यू n by 2 से ग्रेटर देन होती है तो हम उसके सामने corresponding median class आइडेंटिफाई कर लेते हैं यूजिंग द फॉर्मूला l plus n by 2 minus m upon f into c। तो इसको थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन मैंने यहाँ पे फॉर्मूले को यहाँ पे कर रखा है। तो l प्लस एन बाई टू माइनस पी सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। तो एल यहाँ पे क्या हो गया, आपका लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है। पीसीएफ आपका प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो भी मीडियन क्लास आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। आई जो होता है आपका वो साइज ऑफ द मीडियन क्लास। एन इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि हमें डेटा से मिलता है। तो इस तरह का एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। एल इज लोअर लिमिट। तो कॉन्टिन्यूस मैनर में जब क्वेश्चन देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूअस सीरीज के टर्म में दे रखा है। यहाँ पे मास जो है वो 0 to 10 है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। तो कंटिन्यूअस मैनर में सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जो वैल्यूज हैं हमारी इन द टर्म ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यू टर्म में है कि नहीं है। तो एवरीवेयर द इंटरवल जो है वो सेम है कि नहीं है, एंड जो लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट के इक्वलेंट है कि नहीं है। ये सब चीज़ें देखने के बाद, जैसे यहाँ पे जो 0 to 10 है दैट इज द लोअर लिमिट एंड दैट इज अपर लिमिट। तो इंटरवल में अगर दो कंटिन्यूस सीरीज में देखते हैं तो एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो ये हम चेक कर लेते हैं कि लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है। और उस जब अपर लिमिट हमें लोअर लिमिट पता है तो देन वी फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 10 10 हो गया, 10 प्लस 20 30, 30 30 60 और 50 180 180। तो यहाँ पे 180 आ गया। तो फॉर्मूला लगता है हमारा n बाई टू का, 180/2 करेंगे 90 आइटम। तो 90 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है नहीं, तो 90 से हमारा क्या हो जाएगा 110। तो 110 के सामने हम जो डेटा देखेंगे तो 30/40 है। तो जब हमारे 30/40 निकलेगा दैट इज़ अ मीडियम क्लास। तो इस तरह से हम एक 30 to 40 एक मीडियम क्लास को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं 30 to 40 को। एंड 50 110 है। तो यहाँ पे 30 and 40 में जब यहाँ देखेंगे तो ये 30 इज द लोअर लिमिट। तो एल की वैल्यू जो होगी 30 इज लोअर लिमिट, तो एल इज टू 30। 50 जो सामने है, जो मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसको एफ लिखते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी जो मीडियम क्लास होती है उसके प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम पी सी एफ दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा मीडियन का लगता है वो एल प्लस एन बाई टू माइनस पी सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। तो एल की वैल्यू आपकी 30 हो गई, एन बाई टू आपका 90, ये 180 था, एन इज टोटल वैल्यू 180। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 90। पी सी एफ आपका 60 था, फ्रीक्वेंसी सामने मीडियम क्लास में 50 थी। एंड आई इज 10। आई 10 क्यों लेते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में दैट इज रिप्रेजेंट बाई आई। तो यहाँ पे आई तो 10 हो गया दैट। तो मीडियन जब हमने सॉल्व किया दैट इज वैल्यू ऑफ द 36। तो इस तरह से हमारी जो वैल्यू आ गई दैट इज 36। तो इस तरह से हम मीडियन निकालते हैं कॉन्टिन्यूस मैनर में। कुछ और क्वेश्चन है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फिक्सिंग यहाँ पे एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है जिसमें हमारा मीडियन दे रखा है 35 एंड टोटल वैल्यू जो दे रखी है 170 है। एंड दैट सीरीज इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस सीरीज है। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको जो वैल्यू दे रखी है वो 0 to 10 10 है, 10 to 20 है, 20 30 आपका मिसिंग है, 30 to 40 40 है, 40 to 50 आपका मिसिंग है, 50 to 60 आपका 25, 60 to 17 आपका 15 है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्स मान लेते हैं, 20 to 30 में एक्स मान लेते हैं एंड एक्स इज वाई मान लेते हैं। तो देन वी फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, 10 10 हो गया, 10 to 20 30 हो गया, एक्स 30 प्लस एक्स, 32 प्लस 40 70 प्लस एक्स, और यहाँ 70 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, 95 प्लस एक्स प्लस वाई, 95 प्लस 15 इज 110 प्लस एक्स प्लस वाई। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 110 एक्स प्लस वाई इजकल टू 170 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला आ जाता है एक्स प्लस वाई इजकल टू 170 माइनस 110। तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाता है वो 60। तो वाई को हम क्या ले सकते हैं 60 माइनस ले सकते हैं। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला, क्योंकि हम यहाँ पे हमें मीडियन हमें पहले से पता है 35 है, तो वी नो दैट कि व्हाट इज द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास। तो हमें मीडियन क्लास ढूंढने में आसानी हो जाती है, क्योंकि मीडियन अगर 35 दे रखा है तो वो कहाँ होगा 30 और 40 के बीच में होगा। तो ये हमारा मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास में लोअर लिमिट 30 हो गई, फ्रीक्वेंसी 40 हो गई, एंड पीसीएफ जो है वो आपका 30 प्लस एक्स हो गया। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मीडियन आपका 35, लोअर लिमिट 30, एंड एन जो एन बाई टू का फॉर्मूला था 170/2 माइनस जो 30 प्लस एक्स था वो 30 प्लस एक्स अपॉन 40 इंटू 10। तो 35 माइनस 30 हो गया 85।
2 से डिवाइड कर दिया, 285 माइनस 30 प्लस माइनस एक्स हो गया अपॉन 40, 0 0 कर दिया, 4 आ गया। तो देन वी सॉल्व दैट, तो हमारी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 35 आएगी, क्योंकि वाई इजकल टू हमने 60 माइनस एक्स लिखा है, तो वाई इज 60 माइनस 35 इजकल टू 25। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी बोथ आर इज 35 और 25। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करते हैं अगर हमें मीडियन दिया रहता है तो। इसकी तरह एक अलग क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन में इस डिसकंटिन्यूस के डेटा के टर्म में डिफाइन किया है। डिसकंटिन्यूस डेटा का टर्म यहाँ पे इस तरह से डिफाइन हुआ है, देखिए जैसे कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में आपका डेटा दे रखा है वो 60 टू 64 है, 65 टू 74 है। दिस इज नॉट बी कंटिन्यू मैनर, कंटिन्यू मैनर में नहीं है, तो इसको कंटिन्यू मैनर में कन्वर्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे 60 टू 64 है, 65 टू 74 है, 75 टू 79 है, तो गैप इज ओके, गैप तो आपका सेम, गैप आपका सेम है, 60 टू 64 है, 60 टू 64, 65 टू 74, 75 टू 79 है, फिर 80 टू 84 है। तो यहाँ पे जो गैप है वो इट इज़ सेम, मतलब जो गैप है वो भी डिफ्रेंशिएट कर रहा है, बट कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं है। कॉन्टिन्यूस मैनर का मतलब है यहाँ पे जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है वो दोनों में डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। 64 65 मतलब वन का डिफरेंस है, 74 75 तो एक का डिफरेंस है, 79 टू 80 एक का डिफरेंस है, 84 85 एक का डिफरेंस, 94 95 एक का डिफरेंस, 99 100 एक का डिफरेंस। तो हमें जो ये होता है इसको कंटिन्यू मैनर में करने के लिए क्या करना होता है, जैसे हमारा एक का डिफरेंस आ रहा है तो हम क्या करते हैं, 0.5 डिवाइड कर देते हैं। तो 0.5 डिवाइड कर क्या करने का मतलब है, यहाँ पे जो भी हमारा जो अपर लिमिट है वहाँ पे हम 0.5 ऐड करते जाते हैं। तो 64.5 हो गया, 74.5 हो गया, 79.5, 84.5, 94.5, 99.5, 104.5, और इसमें ऐड करते हैं अपर लिमिट में और इसमें माइनस करते जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 59.5, ये हो जाएगा 64.5, ये हो जाएगा 74.5, ये हो जाएगा आपका 79.5, या आप यहाँ देखेंगे 84.5, यही चीज़ आपकी 95। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जब हम इसको इस तरह से करेंगे तो आपकी लो जो अपर लिमिट है वही लोअर लिमिट होगी दूसरी सीरीज की, अपर लिमिट। जब हम इस तरह की चीज़ करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इस चीज़ का असर नहीं आता है, तो फ्रीक्वेंसी पे कोई डिफरेंस नहीं आता। फ्रीक्वेंसी का सीधे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, 10 टू 14, 10 39 में प्लस किया 49, 30 84 20 आपका है 104, 27 39 और 39। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन में यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि देखिए जो 59.5 और 64.5 के बीच का डिफरेंस है दैट इज़ 5, बट 64.5 और 74.5 का डिफरेंस जो है वो 10 है। तो कई बार क्या होता है, जो आपकी जो क्लासेस होती हैं, जो डेटा सीरीज होता है उसमें हो सकता है इंटरवल डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, बट जो डेटा अगर आपका इंटरवल जो डिफरेंस है, अगर इंटरवल में अगर डिफरेंस हो रहे हैं तो हम उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती हमें, क्योंकि हमारा जो मीडियन आता है वो डेटा के बीच का आता है। जैसे 79.5 है तो 84.5 के बीच में, 79.5 से 84.8 के बीच में आएगा। बट यहाँ मैटर करता है कि हमारा डेटा पहले कंटिन्यूस मैनर में होना चाहिए। इंटरवल गैप डिफरेंस है तो कोई इशू नहीं है, अगर इंटरवल गैप्स डिफरेंट होने के बाद भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर करेक्ट आएंगे। बट अगर कॉन्टिन्यूस डेटा नहीं है तो आपको कॉन्टिन्यूस डेटा में कन्वर्ट करना होगा। तो आफ्टर आप जब फ्रीक्वेंसी होती है तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट करने के बाद हमारी जो टोटल वैल्यू आ रही है सिग्मा एफ इज 145 आ रही है, दैट मीन्स एन की वैल्यू जो है 145 आई है। तो हमारा जो मीडियन क्लास होगा वो n/2 हो जाएगा, 145/2 तो 72.5, तो 72.5 तो यहाँ पे है नहीं, उससे बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है 84 है। तो 84 के सामने हमारी जो क्लास होगी वो 74.5 और 79.5 वाली है। तो आपकी एल की वैल्यू 74.5 हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है। एन की वैल्यू 145 है तो 145/2 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी आपकी 35 हो जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 49 हो जाएगी। जो प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जब हम आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 5 का डिफरेंस है। 74 और 79, 74.5 और 79.5 को माइनस करेंगे तो 5 का डिफरेंस है, 5 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मीडियन आएगा वो 77.86 आ रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें याद रखना पड़ता है कि जो डेटा है उसको किस तरह से कॉन्टिन्यूस में करना है। अगर आपके इंटरवल में डिफ्रेंशिएशन आ रहा है तो दैट इज़ नॉट बी अ बिग इशूज, आप उसी डिफ्रेंशिएशन के बेस पे सॉल्व करिए, बट डेटा को कॉन्टिन्यूस मैनर में करिए। इसके बाद थोड़ा सा एक क्वेश्चन हमारे लेस देन और मोर देन के भी आते हैं, जो हमारे मीडियम क्लास में लेस देन और मोर देन कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको एक बार डिफाइन करते हैं। इन टर्म ऑफ मीडियन क्या होता है, लास्ट टाइम में आई ऑल्सो डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेस देन और मोर देन, तो इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे भी कर लेते हैं। सो जब भी क्वेश्चन आपके लेस देन और मोर देन के क्वेश्चन होते हैं तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक चेंज होती जाती है।
जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द मीडियन करना है, तो लेस देन 10 लेस देन 20, तो यहाँ डिफरेंशिएशन जो चल रहा है वो 10-10 का चल रहा है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट बनता है वो 0 to 10 बनेगा। तो 10 के ऊपर तो ऐसी कोई वैल्यू है नहीं, तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी माइनस होती जाएंगी, तो 10 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, फ्रीक्वेंसी 4 है तो फ्रीक्वेंसी 4 ही लिखेंगे। जब लेस देन 20 की बात होगी, 10 से 20 के बीच में, तो 10 से 20 के बीच में 16 का 4 से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी होगी, 12। जब लेस देन 20 है तो 20 से 30 के बीच है, 40 में 16 माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। इसी तरह 30 to 40 करेंगे, 76 से 40 माइनस करेंगे 36 आ जाएगा। इसी तरह आपका लेस देन 15 है, 96 को 76 से माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। 112 को 96 से माइनस करेंगे 16 आएगा। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती रहेगी, और जो हमारा लास्ट बनेगा वो 70 to 80 बनेगा। 125 से 120 माइनस होकर 5 आएगा। तो जब ये हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, देन वी यूज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 4+4, यहाँ 4 से 4 ही आएगा। 4 को 12 से पास करें 16, 16 24, 40, 14 को 36 से 76, 76 to 20 से 96, 96 को 16 से 112, 120 और 125 इस दियर। तो यहाँ पे n/2 का फॉर्मूला लगाएंगे, 125/2 तो 62.5 आ रहा है। तो 62.5 इज नॉट इज दियर इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उससे जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो उससे ग्रेटर वैल्यू क्या है, 76 है। तो 76 के सामने जो क्लास आ रही है वो 30 to 40 क्लास आ रही है। तो हमारी जो मीडियम क्लास है 30 to 40 है। तो एल की वैल्यू आपकी 30 हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी एफ इसका 36 हो जाएगा, क्यूमेटिक फ्रीक्वेंसी जो आपकी होगी, पीसीएफ जो होगा वो 140 हो जाएगा, और जो डिफरेंस आपका आ रहा है आई का वो 10 हो जाएगा। तो उसको हम सीधे सीधे फॉर्मूले में रख लेते हैं, n+y n/2 CF/F इंटू आई। तो एल की वैल्यू और दे रखी है, जो मैंने बताया था वही चीज़ है, सब चीज़ों को वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 36.25। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है लेस देन के क्वेश्चन में। अब जो नेक्स्ट हमारा है, जैसे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन बिलो हो या लेस देन हो तो सेम ही होता है, बट हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि लेस देन में जो जब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डेगोरे इंक्रीज हो रही है। लेस देन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो भी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है वो इंक्रीजिंग मतलब आपके राइजिंग मैनर में होता है, और जो आपका मोर देन का कॉन्सेप्ट होता है वो डिक्लाइनिंग मैनर में होता है। तो अगर जैसे इस क्वेश्चन में एक ये दूसरा मैंने क्वेश्चन लिया है, इसमें भी क्या है कि बिलो का कॉन्सेप्ट लगा है। बिलो लेस देन इज द सेम कॉन्सेप्ट, बट क्या है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ नॉट बीन अ राइजनिंग मैनर, आपकी राइजिंग मैनर में नहीं है, इंक्रीज नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे जैसे बिलो 10 लिखा है तो 10 बिलो 20 भी यही हुआ, बिलो 30 भी यही हुआ, बिलो 40 बिलो 50 भी यही हुआ। ये एक कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। तो बिलो 10 का मतलब है 0 to 10, तो फ्रीक्वेंसी आपकी 5 ही रहेगी। बिलो 10 10 to 20 तो ये माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 10 to 20 कितना लेंगे, 2 ही रखेंगे। 20 to 30 8 रखेंगे, 50 रखेंगे। तो जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 5 7 15 20 30 आ गया, और उसके बाद हमने सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू जो मीडियन आएगी वो हमारी क्लियर आएगी। एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली होती है, जो भी आपकी मीडियन वैल्यूज़ होती हैं, जो भी आपकी मीडियन निकलता है, वैल्यूज़ निकलती हैं, वो आपको हमेशा क्या होती हैं, डेटा के बीच में से ही होती है। जैसे आपको इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, जो आपका 0 से आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, ग्रेटर देन कितना 80 है। तो आपकी जो मीडियन भी निकला है वो इसी रेंज के बीच में आ रहा है, 36.25। तो इसके बीच की वैल्यू है। तो मीडियल वैल्यू अगर 110 आ रही है इस तरह से आती है तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आ रहा है वो 30 आ रहा है। तो दैट इज करेक्ट आंसर इन द टर्म ऑफ मीडियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जैसे मोर देन के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब भी मोर देन का क्वेश्चन होता है वो डिक्लाइनिंग मैनर में होता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं डिक्लाइनिंग मैनर में है। मतलब 100 से स्टार्ट हुआ और 2 पे चला गया। तो मोर देन की कॉन्सेप्ट में क्या होता है, 10 से ज़्यादा। अब यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस चल रहा है, तो मतलब ये मोर देन 10 से मतलब है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, तो इस तरह जाएगा। तो इसमें हमेशा क्या होता है, जब भी 10 to 20 जाएगा तो 100 का माइनस होगा 94 से। तो 100 का 94 से माइनस होगा तो 6 आएगा। 94 का 86 से माइनस करेंगे तो वैल्यू अलग आएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जब इसको राइजिंग मैनर में किया तो 10 to 20 में 6 आया, 20 to 30 में आपका 8 आया, 30 to 40 आपका 12 आया। ये कैसे आया, ये माइनस करने से आया। 100 का 94 से माइनस किया तो 6 आया, 94 को 86 से माइनस किया तो आपका 8 आया, 8 आएगा। 86 को 74 से माइनस करेंगे तो 12 आएगा। 74 को 56 से माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू 18 आएगी, फिर 25। तो लास्ट की जो वैल्यू होती है वो 2 है, वो सेम रहती है। ये देखिए, मोर देन में हमेशा लास्ट की वैल्यू सेम रहती है, क्योंकि 90 के बाद 100 है, तो 90 to 100 में तो कोई वैल्यू हमें 100 में दे नहीं रखी है, तो जीरो ही मानेंगे। 2 - 0 होगा तो 2 ही आएगी।
ठीक है, तो लेस देन में हमेशा ऊपर की वैल्यू जो होती है वो सेम रहती है, और मोर देन में हमेशा लास्ट की जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है। देन सेम कॉन्सेप्ट इज देयर, जब हमें फ्रीक्वेंसी पता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, 6, 14, 26, 14 एंड 100 आ गया आपका सेम। एन की वैल्यू 100 हो गई, 10 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 50 आइटम। तो 50 आइटम तो है नहीं, तो 50 से बड़ी वैल्यू जो है वो 69 है, दैट इज़ अ मीडियम क्लास। तो एल आपका 50 आ गया, फ्रीक्वेंसी आपकी 25 आ गई, सी आपका 44 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको सारी वैल्यू मिल जाती है, देन यू आइडेंटिफाई 52.4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द मीडियन। तो इस तरह से एक मोर देन का कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाता है कि किस तरह से मोर देन की कॉन्सेप्ट में हम करते हैं। तो जो हमारा मीडियन है उसमें अगर हम तीनों चीज़ों डेटा सीरीज को पढ़ेंगे या डिफरेंट मेथड्स को पढ़ेंगे, तो इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सो गाइज, तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से रिवाइज करें, अगर किसी भी टर्म में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस तरह से हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम आ रही है या डेटा कन्वर्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो को बार बार देखें और बार बार समझने की कोशिश करें। जो भी चीज़ें हैं वो क्लियरली आपको समझ में आएंगी, जिस तरह से भी है। ये एक न्यूमेरिकल पार्ट था। नाउ नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियन। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अर्थमेटिक मीन, unlike the arithmetic mean, the median can be computed for open-ended question. This is because it is located in the median class interval. This should not be open-ended class, which should not be an open-ended class. Arithmetic mean में क्या होता है, जितनी हम रेंज बढ़ाते जाते हैं तो वो हमारा ओपन एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई भी उसमें रेंज किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं। बट मीडियन में क्या होता है, वो क्लोज एंडेड होता है, वो हमारे पता होता है कि 0 से स्टार्ट हुआ है, 100 तक जा रहा है। एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें आइडेंटिफाई होता है व्हाट इज द लोअर लिमिट, व्हाट इज द अपर लिमिट। तो ये क्लोज एंडेड वाला हो जाता है। एंड इट इज नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू से कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। इट इज प्रिफर इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग एक्सट्रीम वैल्यू। तो एक्सट्रीम वैल्यू से इसलिए डिफेक्ट नहीं होता क्योंकि हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पता करनी होती है, तो इन चीज़ों में हमें करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो इन केस ऑफ द क्वालिटी डेटा व्हेन द आइटम्स आर नॉट काउंटेड और मेजर्ड बट आर स्कोर्ड और रैंक्ड, इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द सेंटर टेंडेंसी। इन केस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा वेयर द आइटम्स जो काउंट कर रहे हैं, काउंटेड और मेज़र करते हैं, उसमें हम रैंक नहीं देते। तो इसमें जो मेजर टेंडेंसी है वो आप क्लियरली थ्रू द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। अगर मेरिट और डिमेरिट की बात की जाए तो मीडिया इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज बिकॉज इज अ पोजिशनल एवरेज, क्योंकि मैंने लास्ट शुरुआत में ही बोला था दैट इज अ पोजिशनल एवरेज। तो इसमें वैल्यूज़ को एक्सट्रीम या लो करने का उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज ओपन एंडेड का, वहाँ पे कैलकुलेट नहीं होता। मीडियम कैन बी लोकेटेड इवन इफ द डेटा आर इनकम्प्लीट। अगर डिमेरिट्स की बात करें तो मे बी ड्रास्टिक चेंजेस इन मीडियन वैल्यूज हो सकता है, इवन नंबर आइटम है कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो एस्टिमेट वैल्यू अदर देन एनी वैल्यू ऑफ सीरीज भी हो सकता है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एसेट विद द कैलकुलेटिंग मीन डेविएशंस, इट इज़ नॉट बी सुटेबल। इट डज नॉट टेक एन इनटू अकाउंट ऑल द ऑब्जर्वेशन। ये कभी भी पूरे सारे ऑब्जर्वेशन को के बेस पे नहीं होता क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज है। एवरेज, पोजिशनल एवरेज में जब भी होता है तो हमें वैल्यूज से कोई मतलब नहीं होता। So all these things about the medians. So thank you class. Hopefully you understand what is the median and how to calculate the median in different data series, and I think it is helpful for you for your examination and further knowledge about the statistics. So my next topic is a mode, so wait for a mode uh, videos. Thank you, and thank you so much for your kind attentions. Okay, thank you class.